हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे जैसा हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट था शेयर्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ शेयर्स। आज हमारी जो हेडिंग है काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो कंपनी कैन रेज द कैपिटल एंड कैन द raise the capital, increase the capital, the various sources. There are the first sources is the kinds of shares. Company can issue the two types of shares. First is the equity and second is the preferences. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंसेस शेयर्स। कंपनी कैन इशू द टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इज द इक्विटी एंड सेकंड इज द प्रेफरेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विटी शेयर्स? Equity shares, that is a main important source of company. The initial stage a company can issue the equity shares and then person we have to purchase these types of shares is called as a shareholder or real owner. These shares are called as a ordinary shares, and these shares the company can collect the capital is called as the permanent capital or the own capital. The company can issue the equity shares and these source the companies collect the capital and invest the fixed and these capital invested and purchase buying the fixed assets. And then there is a kinds of shares. The first is the equity shares and these shares is the ordinary shares. A company in the initial stage we have to issue the increasing or raising the capital, and then the first is the equity share and second is the preferences shares. Preferences share, what do you mean by the preferences shares? Preferences share, the person we have to purchase, there is a second shares, the company can issue the preferences share. These shares the company is issue raising the capital or increase the capital. At the time the person we have to purchase these shares, it is called as a shareholder. It is another is a shareholder, but the company is giving the profit of equity and preferences. The company these shares we have to get a fixed rate of dividend. Company can giving the dividend of fixed rate of dividend. Dividend means a part of profit. The company is giving the profit or dividend first of all the preferences shareholders, and after we have to equity shareholder. But the preferences shareholder it is not a owner of the company. Equity shareholder is a owner. That is the two types of sources of kinds of shares. The company can issue the shares and collect the capital, that is called as the own capital. There are the two types of shares. This is a company issue, and these types of shares we have to collect the company's capital. It is a own capital. It is a permanent capital. Okay. There is another is point equity shares. What do you mean by equity shares? Equity shares means that is a ordinary shares. It is called as the ordinary shares. The equity shares we have to company it is started. It is initial stage we have to issue, and then these shares is called as the ordinary shares, and then the company we have to issue these shares. The person who purchase these types of shares, it is called as a owner. It is called as a shareholder or real owner of the company. And then these shareholders they are not getting a fixed rate of dividend. It is a fluctuating dividend because the company can more profit. That the time company is giving the profit. It is a part of profit. It is called as a dividend. The company is giving a dividend to the equity shareholder of the year. Okay, but the company is not the profit, it is not getting the dividend. Shareholder, equity shareholder. That is the means of equity shares. This source the company can issue the shares of equity shares, and then person we have to purchase these shares is called as a shareholder, real owner, or these shares is called as the ordinary shares. And then there is a first source of equity shares the company can issue the initial stage, and then equity shares are understand that is the features of equity shares. That is another point is features of equity shares. It is the first of point is permanent capital. First of all, equity shares company issue the initial stage. It is a raise the capital or increase the capital, is collect the capital from the public. At the time the company can issue the equity shares, and then first feature is permanent capital. What do you mean by permanent capital? The companies issue these types of shares and collect the capital, and these capital company is not or it is not giving the return to the shareholder. The company we have to कंपनी जब तक चलते रहेगी तब तक ये शेयर्स का पैसा कंपनी के पास रहेगा, जब तक कंपनी रन होगी, जब तक कंपनी माइंडिंग अप की होगी तब तक ये पैसा कंपनी के पास रहेगा. तो these types of shares का
इक्विटी शेयर्स का जो पहली फीचर्स है परमानेंट कैपिटल, तो ये कंपनी का परमानेंट कैपिटल कहलाता है, जो कि कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करके हासिल करती है। और हासिल करने के बाद ये कंपनी के पास पैसा जब तक कंपनी चलेगी तब तक ये कंपनी के पास होता है। और ये कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के रियल ओनर होते हैं और ये ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। कंपनी जब भी इसको इशू करती है इनिशियल स्टेज पर, तो ये पैसा कंपनी जब तक रन होगी तब तक कंपनी के पास होता है। ये कंपनी का ओन कैपिटल कहलाता है, परमानेंट कैपिटल कहलाता है। सेकेंड है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड ये फीचर्स है इक्विटी शेयर्स की कि जो भी इक्विटी शेयर्स परचेज करेंगे तो हमारे शेयर होल्डर रहेंगे, कंपनी के ओनर रहेंगे। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को मोर प्रॉफिट होता है तो कंपनी उनको ज्यादा डिविडेंड देगी, अगर कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो कंपनी उनको कम डिविडेंड देगी। डिविडेंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मुनाफे का हिस्सा। तो इट इज अ फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, दैट इज अनदर फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। थर्ड इज राइट्स। अब इक्विटी शेयर जिन जिन लोगों ने परचेज किए, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनके क्या राइट्स होते हैं कंपनी में। फर्स्ट इज राइट टू वोट। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है, रियल ओनर है, उनका पहला राइट ये रहेगा हमारी कंपनी में कि वो हमारी कंपनी में वोट कर सकते हैं। सेकेंड राइट है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स, कि कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कंपनी प्रॉफिट का हिस्सा देगी, जिसे कहा जाता है डिविडेंड, उनमें उनका हिस्सा रहेगा। थर्ड राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स। और ये इक्विटी शेयर होल्डर जो हमारी कंपनी के रियल ओनर है, शेयर होल्डर्स है, इनका ये राइट्स रहेगा कि वो हमारे कंपनी के बुक्स को, यानी स्टैट्यूटरी बुक्स है, परचेज बुक्स है, सेल्स बुक्स है, कैश बुक्स है, इसको क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उनका अगला राइट्स है राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और वो अपने जो इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं वो अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये उनके राइट्स है इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो ये फीचर्स है इक्विटी शेयर्स की के इक्विटी शेयर होल्डर्स के ये चार राइट्स होते हैं। इसके अलावा भी और राइट्स होते हैं। अगला पॉइंट है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। नो प्रेफरेंशियल राइट किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि कंपनी दो तरह के शेयर्स मार्केट में इशू करती है, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस शेयर होल्डर्स को कंपनी का डिविडेंड फिक्स देती है, हर साल फिक्स देती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन इक्विटी शेयर्स का ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी जब प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है नो प्रेफरेंशियल राइट्स, कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये राइट्स नहीं है कि वो पहले अपना डिविडेंड हासिल करे। पहले कंपनी डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को देगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। और जो कैपिटल उन्होंने लगाया है, जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, वो भी उनको पहले नहीं मिलेगा, बल्कि पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तब उनको ये पैसा वापस मिलेगा। इनका कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है डिविडेंड के ऊपर। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग पावर्स। इक्विटी शेयर जो खरीदते, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, उनके कंट्रोलिंग पावर्स ये होते हैं कि वो हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा अपने शेयर्स ट्रांसफर भी कर सकते हैं और हमारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं कंपनी के। तो ये उनको कंट्रोलिंग पावर्स होते हैं जो लोग इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर होते हैं। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क क्या है? इक्विटी शेयर्स की ये फीचर्स है कि इसका रिस्क बहुत है, क्योंकि अगर हमने इक्विटी शेयर्स परचेज किए कोई कंपनी जब इशू करती है इक्विटी शेयर्स और आप उसके शेयर्स अगर परचेज कर लेते हो तो आप कंपनी के रियल ओनर हो जाते हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हो। बट कंपनी अगर डूब जाती है या बंद हो जाती है तो आपका पैसा डूब जाता है। तो इसमें ज्यादा रिस्क होता है कि जो लोग इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं। तो ये फीचर्स है कि इक्विटी शेयर्स में जो 6 फीचर्स है रिस्क। तो ये रिस्क ये होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उसको डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता है। और कंपनी अगर बंद हो जाती है, जल जाती है, डूब जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उनका पैसा डूब जाता है। तो आज हमने ये देखा है आज के लेक्चर्स में कि काइंड्स ऑफ शेयर्स की कंपनी कितने तरह के शेयर्स मार्केट में इशू करती है। तो देयर आर द two types of shares. First is the equity and second is the preferences. Equity shares और preferences shares. उसके बाद हमने देखा है कि इक्विटी शेयर्स किसे कहा जाता है। तो इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स को भी कहा जाता है और इक्विटी शेयर्स से जो पैसा कंपनी को हासिल होता है वो कंपनी का ओन कैपिटल होता है और ये परमानेंट कैपिटल होता है।
होता है और इक्विटी शेयर्स जो परचेज करते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर कहा जाता है। और कंपनी का एक ऐसा सोर्स होता है जो कंपनी इनिशियल स्टेज पर इसको इशू करती है। वो हम उसके फीचर्स देखेंगे सर, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसमें पहला है परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर से जो पैसा कंपनी को हासिल होता है, कंपनी जो कलेक्ट करती है, उसको परमानेंट कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि कंपनी जब तक रन होगी तब तक ये पैसा कंपनी के पास होता है, कंपनी इसको वापस नहीं देती है, बल्कि जब वाइंडिंग अप होती है कंपनी, तब कंपनी अपने इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पैसा वापस देती है। उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड कहा जाता है कि इक्विटी शेयर जो परचेज करते हैं इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी को मोर प्रॉफिट होता है तो कंपनी को ज्यादा डिविडेंड देती है, अगर कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो कम डिविडेंड देती है, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी को डिविडेंड नहीं देती। तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड कहा जाता है, मोर प्रॉफिट तो मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट इट इज अ लेस डिविडेंड। अनदर इज राइट्स। अब इक्विटी शेयर जो लोग परचेज करते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं? पहला कि वो वोट कर सकते हैं, दूसरा कि हमारे कंपनी के प्रॉफिट में उनका हिस्सा रहेगा डिविडेंड में, और उसके अलावा वो हमारी कंपनी की जो बुक्स है, स्टैट्यूटरी बुक्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक को वो चेक कर सकते हैं। और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, उनका ये राइट्स है कि वो अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। अगला है नो प्रेफरेंशियल राइट्स, उनके कोई भी राइट्स नहीं रहेंगे डिविडेंड के लिए। पहला जो है और दूसरे पहला राइट जो तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का रहेगा, सेकंड राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहेगा, और इनका ज्यादा राइट्स नहीं होता है डिविडेंड के ट्रांजैक्शन। इसके बाद है कंट्रोलिंग पावर्स। कंट्रोलिंग पावर्स में रहेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो पावर्स होते हैं कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट है रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, क्योंकि अगर कंपनी जल जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, वन बाइंडिंग अप होती है, तो इनका पैसा डूब जाता है। सबसे ज्यादा रिस्क किस कौन लेता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो आज हमने ये फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर्स के फीचर्स हमने 6 जो है कंप्लीट किया है। होप है सभी को समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।